Good morning, everyone. Welcome to Charcha 2020. Good We are morning. now starting the session Disasters, the ground realities are often different. This is a session that's going to be moderated by Mr. Anshu Gupta, the founder of Goonj. Mr. Gupta, I request you to start the panel, please. Hello and welcome. Yeah. Hello. So what we Good morning. decided, because this is something where suddenly all of us are talking about a disaster, and one disaster which is completely different from any other disaster because it is still unfolding. As we have been saying that in many other disasters, the disaster happened for a few minutes or second, or for a few days in the case of a flood, and then soon after that the recovery starts, or at least the work on that starts. And it's been 2 months in India of all almost 2 months of lockdown, and we see that every single day it is actually going bad. More than the virus, what has happened in India is the disaster of displacement and joblessness, and this entire walking for hundreds and thousands of kilometers, hunger, and obviously much later all kind of impacts which are going to happen. So what we decided in this particular panel is to bring people who have been practicing in the field, who are working with farmers, who are working with the village people, who are working with small partner organizations. So what are these realities? I mean, because when I do a series on myths and realities around disaster, so there are it's like a series of perceptions, the way we perceive about it. I mean, it's not that migrant workers are new to the cities. It's not that migrant workers are new to the country. It's not that farmer society is new to the country. But we have become so used to of all these things that we actually stopped caring about it. None of us really know that how many migrant workers were there in our cities, in their states. And also, with time, we have actually distorted the definition of migrant workers. I mean, that way, even I am a migrant worker. Every single political leader, most of the business people are actually migrant workers because, most of them are displaced people. Most of us are displaced people. The only difference was that I came by choice and someone else came by compulsion. And then eventually, I started living inside the house and someone started living outside the house or in some small, tiny places. They are called worker. I am not called worker. I mean, so I think all these perceptions somewhere need to change, and it has made a huge. This particular disaster has made a huge dent on these thought process, if at all we understand. So what we are saying, something which is very new today, is that India and the world is divided in two parts. One, the large number of people who have food, and then the larger number of people who do not have food. And if I further divide it, I say that people who have food are inside the walls, people who do not have food are outside the walls. I mean, if we just divide this nation and the world in two different parts. But the fact remains that, yes, it is really grown big, and the magnitude is too big. But even earlier in India, it was not that small. If a country has a number of 10 to 12,000 farmers committing suicide every year, it's not a small distress. It's not a small disaster. So I will keep talking about it. Let me just introduce the some of our panelists here. That's the most important part, because my role is also not only to speak but also to moderate and I think bring these realities through these practitioners from all across. So I have and then we will we'll talk. But let me just introduce everyone. I have Vijay Pratap Singh Aditya. Many of you know him. He runs an institution called Ekgaon Technologies, very strong
advocate of farmers and farmers' rights and crop and all that. And to be honest, this disaster, we also know that people who have been able to survive, they're not able to survive because of various other things, but largely because of dal and chawal and because of the farmers. I mean, it's unfortunate that the people who have made houses for us are homeless, and the people who have been feeding us are forced to be in the queue for 100 grams of cooked meal. That's very unfortunate. So Vijay very extensively worked with the farmers, and Vijay will bring those aspects in this issue. Dilip Da, very senior Ashoka Fellow, and this panel actually has 4 Ashoka Fellows and 2 senior members of the team. So Dilip Da is a senior Ashoka Fellow, and also known for his work in the Sundarban floods areas, and also remotest possible parts of Odisha, West Bengal, and many other states, and actually has seen a large number of disasters, and have gone through those disasters from the grassroots level. We also got Chandan. Chandan is a senior team member of Goonj, and also looks after Karnataka chapter apart from many other roles. And it was important for us to bring him on this panel because as we are saying that ground is different, ground is also different about the perspectives. When we talk about a large number of urban citizens and people like us, how people operate, what people see, what is the reality, I think that is some angle I am sure Chandan will bring into the table. We also have Seema Prakash, works in Khandwa region of Madhya Pradesh, another Ashoka Fellow. But more importantly, why we got her here is that Seema ji and her husband Prakash ji, they have been handling a crisis called malnutrition of children, because we all know that Madhya Pradesh, in that part, it has been a crisis. And how the kids who are already hungry, where the malnutrition death is an issue, or these are the troublesome area, how these are ignored over the years, and how that actually becomes a much larger problem, in this particular disaster. Then we have Anita, who is the lead team members for the lead team for the partnerships, and sits in Delhi. As you know, that at Goonj we are working with over a few hundred partner organizations, and this particular disaster, where we wanted to reduce the human touch, and we knew that logistics are very complicated. That's where the partnership played a very important role. And I think I'll ask Anita to cover the perspectives of the smaller institutions or the partner organization, how they are dealing with this particular disaster, or suddenly the issue of hunger, which is an addition in their portfolio because they were working on so many other things. So a lot of those insights will come from Anita. So I think Vijay, we should just start this discussion instead of just me talking. And so the farmer distress is one of the key part of this country, right? This is a country which has valued food much more than the farmer, and we have been arguing that farmer everyone calls unskilled. I mean, someone who really can mix and match various variety of आम or mango and can develop a new breed of mango is actually called unskilled. और सेम बंदे को आप यदि शहर में ले आते हो और उसको एक कारपेंटर बना देते हो, ड्राइवर बना देते हो, तो आप उसको यू स्टार्ट कॉलिंग हिम स्किल्ड पर्सन. तो बहुत और and then there are issues on crop. There is this entire greed of cash crop, and I've been saying that show me even few farmers who have been growing cash crops and have become cash rich. And this particular disaster has actually proved that food is one of the best thing and one of the most important part. That is the only thing because of which those millions of people are actually walking and forced to walk thousands of kilometers. So I need you to pitch in and come back with your perspectives, not only in terms of this particular disaster, but also the way these things are cooking up. These things are happening, and we didn't notice. And
how the farmer suicide became so normal in this country that it is just one number, and that also is very controversial number, right? So over to you, Vijay, for the next few minutes. You need to unmute yourself. In fact, okay. In fact, very interesting thing is that whenever we talk about farmers and when we try to understand India's farm sector, then generally the things that you keep hearing at the high vocal is that farmer requires subsidy. These are the high decibel information that you keep hearing all the time. Farmer requires subsidy. Their productivity is very low. The land size is very small. And farmer is not skilled, like you said, skilled enough to do cultivation. That is why there is a problem. Now, each of this, if you try to analyze, then you find that these are all factually incorrect realities that are imposed on by the media, by the political establishment, even by the people from the agriculture institution, the Indian Council of Agriculture Research, and many of its institutions, which perpetuate this myth to a large level. You talked about suicide. India is in South Asia, and we are the only country in South Asia, which includes Pakistan, Bangladesh, which are both are considered poor countries. There are no farmer suicides there. India alone has farmer suicides. So there is need to understand that within the South Asian context also we are not having suicides. Now we don't to relate, or whenever we try to look into, we always say that हमारा production खराब है, मतलब productivity बहुत खराब है farmers, उसके लिए हम चाइना के figures, थाईलैंड के figures, अमेरिका के figures को quote करते हैं कि इतना हमारा किसान उगाता है तो हमारा किसान कम उगाता है इसलिए वो poor है. So blame is to be passed on to the farmer is what the ultimate aim of the politics around farmers is. तो उस वक्त ये नहीं, तब वो इंडिया का डेटा लेते हैं जब ये वाली बात प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं. प्रोडक्टिविटी में अगर हम सिर्फ पंजाब की डेटा की बात करें तो पंजाब की प्रोडक्टिविटी इज ऑन पार विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड. अमेरिका से लेके, यूरोप से लेके, इजराइल से लेके पंजाब फार्मर्स जो प्रोडक्टिविटी उनका वीट और राइस का है इज बेस्ट इन द वर्ल्ड. बट स्टिल in last 5 years, farmers in Punjab are committing suicide. So it's not, so let's try to understand that where is the problem first and then try to pass a blame about it. India में बोला जाता है कि सरकार बहुत पैसा एग्रीकल्चर में लगाती है. Again, a lie that has been perpetuated for a very long time, whereas India का एग्रीकल्चर almost 90% privately funded है. Privately funded मतलब फार्मर अपने रिसोर्सेस से उसको फंड करता है या जो दूसरे स्टेक होल्डर्स उसमें काम करते हैं, अड़तिया हैं या बाकी लोग हैं, वो अपने रिसोर्सेज से इसको फंड करते हैं. प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ प्राइवेट फंडेड मतलब इंडिविजुअल फार्मर अपने रिसोर्सेज से पूरे सेक्टर को फंड कर रहा है और 1.3 बिलियन लोगों के लिए खाना पैदा कर रहा है. क्या खाने की कमी है? आपने खाने की कमी के लिए, हंगर के लिए बोला. हंगर है इंडिया में, माल न्यूट्रिशन भी है इंडिया में, बट खाने की कमी नहीं है. We are producing about 1.5 times more than what we are requiring in the country. मतलब 1.5 गुना ज्यादा हमारे पास प्रोडक्शन हो रहा है. क्रॉप्स का, कुछ क्रॉप्स में शॉर्टेज है लेकिन क्रॉप्स का हमारा 1.5 गुना ज्यादा है. मगर अगर इंडिया की पॉपुलेशन 500 मिलियन और ज्यादा होती तब भी हम उसको खाना खिला सकते हैं अभी के प्रोडक्शन के टारगेट से. तो प्रॉब्लम, ज्यादातर प्रॉब्लम एग्रीकल्चर की कि जो एग्रीकल्चर का क्राइसिस बोले उसको या परपेचुअल डिजास्टर बोले हम उसको, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 20 लाख के करीब फार्मर्स छोड़ रहे थे एग्रीकल्चर और लेबर बन के माइग्रेट कर रहे थे हमारे शहरों में, और अब इस डिजास्टर के बाद वापस जा रहे हैं क्योंकि वो एक सपना भी टूट गया. क्यों कर रहे थे? उसका कारण ये है कि हमने जो मैकेनिज्म्स बनाए हैं एग्रीकल्चर के अराउंड, मार्केट मैकेनिज्म बनाए हैं या सप्लाई चेन मैकेनिज्म बनाए हैं, वो अपने इनहेरेंट ही एक्सप्लॉयटेटिव है कि फार्मर्स को वो रिम्यूनरेटिव प्राइसेस देते नहीं है. और कहानी वहीं से गड़बड़ शुरू होती है कि प्रॉब्लम वहाँ है, सोल्यूशन हम कहीं और ढूंढ रहे हैं. तो अगर हम इन सारी चीज़ों को जोड़ें तो क्या हम ये पाते हैं कि फार्मर की गलती है? फार्मर की गलती नहीं है, यहाँ फार्मर की कोई भी गलती नहीं. हम ज़्यादातर चीज़ों में अपने आप को
चाइना से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, करना भी चाहिए क्योंकि दोनों सिविलाइजेशनल स्टेट रहे हैं, काफी पुरानी सभ्यताएं हैं। तो अगर हम चाइना से कंपेयर करेंगे तो चाइना ने 20 से 25 साल के बीच में एग्रीकल्चर में बहुत तरक्की की, कि इसका पहले टॉप 10 प्रोड्यूसर्स में भी नाम नहीं आता था, आज की तारीख में नंबर 1 प्रोड्यूसर है एग्रीकल्चर और इंडिया नंबर 2 है। लेकिन अब मैं सिर्फ एक पॉइंट आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि चाइना में एक बैंक है जिसका नाम है एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना। एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना सिर्फ चाइना का ही नहीं, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है तीसरा एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना। इंडिया में एक भी एग्रीकल्चर बैंक नहीं है, नबार्ड एग्रीकल्चर बैंक नहीं है, जो कि मिथ है, अनदर परपेचुएटेड मिथ है। नबार्ड इज एसेंशियली अ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट इनटू कोर बैंकिंग ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। वो एक इतना बड़ा गैप है फाइनेंसिंग का, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर आप फाइनेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं अपनी सप्लाई चेन की, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं सिस्टम्स के अंदर, इनपुट्स की प्रॉब्लम्स होती है, फार्मर को लोन लेना पड़ता है हाई इंटरेस्ट रेट पे, और उसकी वजह से जो साइकिल ऑफ डेट चालू होता है, जिसकी वजह से फार्मर को माइग्रेट करना पड़ता है। इट इज दैट साइकिल ऑफ डेट जिसको वो पे नहीं कर पाता है, उसको माइग्रेट करने के लिए वो शहरों में आता है और फिर वो एम्प्लॉयमेंट ढूंढता है ताकि कि उस डेट को वो माइग्रेट कर सके, उसको सॉल्व कर सके। ये सारे मैंने आपको 4-5 उदाहरण दिए जिससे आपको समझ में आएगा कि हमारे गैप्स कहाँ हैं एग्रीकल्चर की सप्लाई चेन में। ये 4 गैप्स हैं जहाँ की हमने, जिन पे अगर आप पूछे सरकार से कि आपने क्या काम किया है तो इस पे काम नहीं हुआ। इन सारे एरियाज में बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। तो विजय, अभी जो हो रहा है मतलब, और वो अगेन वो एक नई बात नहीं है, वो हर एक डिजास्टर के बाद ऐसा ही होता आया है। और देयर आर लॉट ऑफ डिजास्टर जिनको हम डिजास्टर दैट वे कंसीडर नहीं करते। मतलब जैसे ड्रॉट है, तो ड्रॉट बड़ी मुश्किल से अटेंशन में आ पाया, और वो भी बहुत पर्टिकुलर बेल्ट्स का आ पाया। जबकि इस समय यदि आप डिस्ट्रेस माइग्रेशन देखेंगे तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ड्रॉट रही है पूरे देश में। तो हम जो बात कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि देखिए 3 स्टेप हैं इस वाले डिजास्टर के। पहला जो स्टेप है वो हंगर और स्टार्वेशन का है, यदि हमने उसको कंट्रोल नहीं करा। दूसरा जो आपने अभी बात छेड़ी कि वो पूरे एक उधार के डेट के चक्रव्यूह में फंसने वाले हैं, जो सो कॉल्ड इनफॉर्मल इकोनॉमी में 8 से 15% पर 100 रहता है। तो आपको यदि डेली 80-100 रुपए रोज खाने के लिए चाहिए, तो आप 10 से 15 रुपए रोज उसमें, मतलब हर दिन आपके ऊपर चढ़ेगा पर मंथ का ब्याज। और तीसरा जो बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन होगा, इफ वी डू नॉट रियली वर्क इन द इंडियन विलेजेस पोस्ट दिस डिजास्टर, तो जो ये रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, भले ही लोग ये कह रहे हैं कि वो वापस नहीं आएंगे, मैं भी कविताएं लिख रहा हूँ कि तुम वापस मत आना, बट सच बात यह है कि यदि खाने को नहीं मिलेगा तो फिर एक दोबारा से डिस्ट्रेस माइग्रेशन होगा, और इस बार यहाँ पे उनका और ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा क्योंकि हम लॉज भी चेंज कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो ग्राउंड की रियलिटी क्या है। हाउ डू यू इमेजिन दैट रियलिटी, that if we do not take appropriate actions, to safeguard, to stand with the farming community or the villages of India, what is going to happen? I mean, if you can just maybe have your imagination in the next couple of minutes, and then I move to other people. Sure. So if we see the reality that I am seeing are very, very, very dangerous. It is a sudden realization that the aspirational possibility of a better life is not possible anymore. That reality is dawning on people in a very, very quick pace. Sometimes that reality takes 5 years for a worker to work in a city to realize that, and that the worker goes back. But in here, that thing has happened within weeks. This whole reality has sunk in within weeks. So the kind of response I'm getting from the farmers and trying to understand what the farmers are doing is that farmers are moving dramatically into a very desperate savings mode, that save all expenses, whatever expenses, curtail all expenses possible, go into a massive saving mode, try to conserve cash as much as possible, and try to return to whatever food supplies that they can secure, given that most of them now grow the same kind of crop. So the crop diversity or the food diversity is very poor in many villages.
So they are going into the shell where they are trying to save all money that is possible to go into a mode where they will try to secure food security first, then anything else. So health security takes a back seat, education takes a back seat, all other expenses takes a back seat, whatever small festival or whatever expenses are there taking a back seat. And as you rightly said, the chances of them coming back are there, definitely are there in more worse condition considering labor laws are getting changed. But still, I would still believe that many of the farmers would like to stay back and try to see what else they can do. What else can they look for? They might try to seek employment through the Manrega program, where claims are being made that that more employment will be provided. I highly doubt that, because NABARD reports of 2016-17 says that the average employment of total Manrega workers was just 4.7 days in a year. Now, imagine our promise was 100 days and we have reduced it to 4.7 days. So now from 4.7, even if you increase it to 100% also, I don't see it happening in the shortest span of time. मतलब 9 days 10 days का मतलब 1,500 रुपए साल के। Yes. ये आप ये देखो तो मतलब वो हम लोग बात क्या कर रहे हैं, हम 120 रुपए लिटरली महीने की बात कर रहे हैं, 120-150 रुपए। तो वो इतना ओवररेटेड है वो सारी कैलकुलेशन। चलिए, शुक्रिया विजय, मैं आई विल कम बैक टू यू। सीमा जी, आपका क्योंकि वैसे भी कनेक्शन की प्रॉब्लम्स है तो मुझे लगा पहले आपसे बात कर लूं। आपको सुनाई दे रहा है सीमा जी? हेलो सीमा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए कोई नहीं, आप उसको हेलो, ठीक है। दिलीप दा, आपसे बात करते हैं 2 मिनट, क्योंकि आपका बहुत एक बड़े लेवल पे ग्रास रूट का एक्सपीरियंस रहा है। इतने मतलब आप हमारे सेक्टर के बुजुर्ग हैं, और वी ऑल हैव सीन यू हाउ यू बिल्ड अप, हाउ यू वर्क इन द ग्रास रूट। और एक बहुत ही डिजास्टर प्रोन एरिया में आपने सुंदरबंस में कभी इतना काम किया, फिर उड़ीसा में काम किया। मैं थोड़ा सा आपसे ये पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगा। और देखिए क्या हो रहा है कि कोविड पे बहुत सारी बातें हो रही हैं, जो मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि बहुत सारे इश्यूज पहले भी थे बट हम उन्हें देखना नहीं चाह रहे थे, अब वो हमारी आंखों के सामने आ गए हैं, तो वी आर एबल टू सी दोस। आपका पर्सपेक्टिव इस देश में डिजास्टर्स को लेके, लेट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू कोविड, बट आपका पर्सपेक्टिव डिजास्टर्स को लेके आप बताएं, फिर मैं आई विल गो बैक टू सीमा जी। हाँ, सो अंशु, ये बेटर है सबको मेरा नमस्कार। ये बेटर है कि अगर हम शुरू करें कि हम क्या सीखे, तब वो सामने आ जाएगा। एक तो मुझे लगता है कि कोई भी डिजास्टर को हम देखते कैसे हैं, मेरा दृष्टिकोण उसमें क्या होता है। तो एक तो पहला गड़बड़ी मुझे उसमें लगा कि माने विक्टिम वो अपने आप से हुए हैं, वो खुदा उसका भला करे टाइप के हैं। दूसरी बात ये है कि कभी भी हम लोकल लेवल सलूशन को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, माने जो वो क्या चाह रहे हैं उनको हम सुनते ही नहीं है। ये दूसरा बीमारी है हमारी डिजास्टर फील्ड में काम करने का, कि हम सुनते नहीं है। तीसरी है कि अगर हम परमानेंट सलूशन चाह रहे हैं तो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का प्रोसेस जो हमको शुरू से ही जारी रखना होगा, इस पर हम ज्यादा काम नहीं करते हैं। हम अपना कहीं से पहुंच जाते हैं, मतलब आमतौर पर जो सरकारी जो हिसाब किताब है उसी से बाकी लोग भी सीखते हैं कि सरकार कुछ लोगों को भेज देते हैं, डिजास्टर के मतलब है तिरपल बांट दो और थोड़ा खाना बांट दो, हो गया डिजास्टर। लेकिन सवाल ये है कि जब तक जैसे सुंदरवन के बाद जो आप ले रहे हैं, सुंदरवन ये एनुअल इवेंट है, हर साल लोगों को पता है कि इस समय ये होगा, तो इसलिए लोगों का कुछ होता भी है, लेकिन फिर भी वो बचा नहीं पाते हैं। दूसरी बात है कि जब हम इसमें जाते हैं, सबसे मुझे जो सीखने को मिला
कि सुंदरबन में एक तो टाइमली इंटरवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनी डिजास्टर में मुझे लगता है टाइमली इंटरवेंशन, लेकिन पहला 15-20 दिन बाकी लोग कुछ करते हैं, लेकिन सरकारी कोई पहल करने के लिए 15-20 दिन लगता है, उसमें लोगों का ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसमें जो एक हमको लगा कि ट्रॉमा जो होते हैं लोगों में, हर साल जहां डिजास्टर होते हैं, बाढ़ होते हैं, इस तरह का जो होते हैं, हर साल वो उस महीना में, जैसे अगर मानसून में होना है 2 महीना पहले से उनको ट्रॉमा शुरू हो जाता है कि पिछले साल ये हुआ था, पिछले साल ये हुआ था। तो ये किसी डिजास्टर में इसमें इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। पहली बार हम लोग थोड़ा बहुत कोशिश किए थे सुंदरबन में। दूसरी बात है कि सुपर साइक्लोन को जब हम देखने गए तो बाहर से सपोर्ट जो आते हैं वो पूछते भी नहीं है। जैसे कि एक गांव में ये आपका मशीन भेज दिया जो इलेक्ट्रिक चलती है, 300 मशीन भेज दिया, लेकिन उनको पता नहीं है कि वहां कोई इलेक्ट्रिक कनेक्शन है नहीं। तो क्या करेंगे, उसको ग्राइंडिंग मशीन भेज दिया, वो क्या करेंगे वो लेकर के, वो तो उनके लिए एक मैंने लोड हो गया, फिर सड़े पड़े रहे कुछ भी हो। तो इस तरह के जो है, जैसे हम गूंज के लोग जब सॉरी क्योंकि गूंज के साथ लगातार काम कर रहे हैं, इसमें आ रहे हैं कि ये जो एक नशा है ना कि हम लोगों का सुने, ये होता नहीं है। दूसरी बात है कि छूटता कौन है, ये हम लोग हमें देखना चाहिए कि जो इनविजिबल है उसके पास कोई नहीं पहुंचता है आमतौर पर। सरकार तो सवाल ही नहीं है पहुंचने का, सरकार तो नेता से शुरू करता है, नेता में ही खत्म हो जाता है। लेकिन बाकी लोग जो कोशिश करते हैं बड़ी ईमानदारी से, उनका भी पहुंच नहीं होता है। उसका खास कारण यह है कि डिजास्टर मैनेजमेंट में मुझे लगता है सबसे जरूरी है लोकल कांटेक्ट। जिस संस्था के पास, जिस ग्रुप के पास, जिन लोगों के पास लोकल कांटेक्ट जितना तगड़ा होगा वो उतना अच्छा ऑपरेशन करेगा, ये मुझे लगता है ये होना चाहिए। और तीसरा मुझे लगता है कि कॉन्वर्जेंस एक बहुत कमजोर पहलू है हमारे यहाँ। किसी भी डिजास्टर किसी सरकार के लिए कभी भी संभव नहीं है कि बिना लोगों की इन्वॉल्वमेंट वो संभाल ले। और हर डिजास्टर में देखा गया कि पहले जो लोग जाम करते हैं वो बिल्कुल आम गांव के आम लोग होते हैं, शुरू हो जाते हैं, वो सारे रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। तो इसमें कहीं कन्वर्जेंस में गवर्नमेंट को भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए कि इतनी बड़ी फोर्स जो उसको हकीकत में जो है कि इतनी बड़ी फोर्स अगर हर डिजास्टर में काम कर रहे हैं, क्यों ना हम उस फोर्स को ऐसे चैनलाइज करने की मौका दे जहां वो नहीं पहुंचते हैं वहां हमारे टीम पहुंच जाते हैं, हमारे जो संस्था के लोग पहुंच जाते हैं, छोटे छोटे ग्रुप पहुंच जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंस सरकार को भी देना चाहिए ताकि ये कन्वर्जिंग एफर्ट होना चाहिए ताकि हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके, ये मुझे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिलीप दा, बहुत सारी बातें आपने बिल्कुल वो बोली हैं जो हम बहुत साल से झेलते आए हैं। जो मतलब वो चाहे लाटूर में ये जुनून हो लोगों का कि सबके लिए टॉयलेट बना दो और पानी कोसों दूर मिलेगा, या जो आप सुपर साइक्लोन में कह रहे हैं कि जाके इलेक्ट्रिक मशीन बांट दो, या सुनामी के बाद अंडमान निकोबार में सैनिटरी पैड भेज दो तो ट्राइबल उसको फेस टिश्यू की तरह यूज कर रहे हैं। ये सब कहानियां नहीं है, ये सब सच्चाइयां हैं जो हम लोग हर डिजास्टर के बाद देखते हैं। और इवन कोविड में भी अब आपको ये देखने को बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा है। मैं अभी जब कल इधर आगरा हाईवे पे निकला हुआ था तो मेरे पास बहुत सारी पिक्चर्स हैं जहां पर चावल अब लोगों ने फेंका हुआ है, और ये वो लोग हैं जो बहुत भूखे हैं, इनके हमें किसी की भी भूख पे शक ना हो जाए गलती से भी। लेकिन यदि 2 महीने से सेम चावल में जीरा और हल्दी डाल के हम देते रहेंगे तो वो कैसे होगा। ये खुशकिस्मती है कि इस देश में एनजीओ सेक्टर ने और आम जनता ने बहुत काम किया है, लोगों को कम से कम इस पर्टिकुलर डिजास्टर में प्रूव किया है कि लोगों को जिंदा रखा जा सकता है। आम जनता भी उस काम को प्ले कर सकती है। टू बी ऑनेस्ट, मैं तो थोड़ा सा इस बात से जो विजय ने छेड़ा भी था कि फूड है इस देश में, वो सच है। क्योंकि मतलब मुझे थोड़ा सा इस बात से नाराजगी है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन्स भरे हुए हैं और उससे एनजीओ को जाके खरीदना पड़ रहा है। मतलब जबकि वो तो फूड सिक्योरिटी इस देश के लिए इसीलिए डेवलप की गई थी कि भाई यदि कोई भूखा है तो उसको खाना दे दिया जाए कहीं ना कहीं, बट हम लोग वहाँ पे मात कहीं ना कहीं खाए हैं। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत सारी अप्रोच
क्योंकि इंडिया में नॉर्मली इन द डेवलपमेंट वर्क और इन द थिंकिंग प्रोसेस like any other country, but India more importantly, it is always a top down approach. जिसके लिए किया जाता है वो कभी उस पूरे चीज का सोच का हिस्सा ही नहीं है, और ऑब्वियसली वो डिजास्टर में एक बहुत बुरी तरीके से निकल के आता है. तो मैं आई विल मूव टू अनीता. अनीता, तुम्हारा एक बहुत एक्सपीरियंस है पार्टनरशिप्स को हैंडल करने का. पूरे देश में इतने सारे टीम के साथ में और ऑर्गेनाइजेशन के साथ में तुम काम करती हो. मैं थोड़ा तुमसे ये कोविड रिलेटेड बात करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं, और बहुत मतलब एक तरफ हम देख रहे हैं कि कमाल का काम कर रहे हैं ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन जो दिलीप दा कह रहे हैं, क्योंकि वो जाहिर बात है कि वो लास्ट माइल डिलीवरी के बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट एजेंसीज नहीं पहुंच सकती, वो कर सकते हैं. और this country has always ignored those grassroots organization, public health center जो grassroots पे होते हैं, आशा वर्कर जो हम अक्सर कहते हैं कि आप आशा वर्कर को उतनी भी तनख्वाह नहीं देते जितनी आप कहीं गुड़गांव या नोएडा में बैठ के अपनी पार्ट टाइम मेड को देते हैं, और आशा वर्कर को आप फुल टाइम लगाए रखते हैं 50 चीज़ों में. तो क्या दिख रहा है तुम्हें, क्योंकि इस डिजास्टर को हैंडल करने का जो सबसे बड़ा तरीका है वो है कि बहुत सारे ग्रास रूट इंस्टीट्यूशंस के साथ में काम हो, क्योंकि ये सिर्फ शहरों का डिजास्टर नहीं है, कि सिर्फ किसी एक लोकल जगह का डिजास्टर नहीं है. इट इज नाउ गॉन बियॉन्ड आवर लिमिट्स ऑफ और कैपेसिटीज ऑफ हैंडलिंग इन सर्टेन केसेस एज ऑफ नाउ. तो ये पार्टनर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और ये किस दौर से गुजर रहे हैं, मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. व्हाट डू यू फील अबाउट these institutions who are at the forefront of this, जिनको कोविड वॉरियर बोला नहीं जा रहा है, बट वो अभी तक लिस्ट में शायद वो आ नहीं पाए हैं, जबकि वो बहुत बड़े लेवल पर उसी कैटेगरी में कर रहे हैं उसका. ओवर टू यू अनीता. सो बेसिकली ऐसा हो रहा है कि बहुत ज्यादा ये कह लीजिए कि बोझ है सोशल सेक्टर के ऊपर. ऐसा होता है कि लोग खुद से गिल्ट में आ जाते हैं कि अच्छा हम नहीं कर पा रही है तो हमारा काम है. So there is a lot of expectation from everyone कि ये तो करेंगे, इनको करना ही है, ये इसी काम के लिए. In normal scenario, this sector is looked down upon कि मतलब आपको जो है बहुत ज्यादा स्क्रूटनी से गुजरना पड़ता है कि अच्छा ये तो चोर होंगे, ये नहीं, मतलब ये पैसा खा लेते होंगे. This disaster, it is all about money. आप और कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको बस खाना खरीदना है और जो है नीडी तक पहुंचाना है. एंड एक फैमिली को सिर्फ 15 दिन का राशन देने के लिए लगभग 1000 से 1200 रुपए जो है, अगर हम बहुत मिनिमम राशन दें तो लग रहा है. तो इतना पैसा जो है एक छोटी ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं जुटा पा रही है. और इतनी एक्सपेक्टेशंस है किसी की भी, गवर्नमेंट अथॉरिटी की हो या जिन लोगों के साथ वो काम करते थे, जिन कम्युनिटीज के साथ उनकी हो, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है. सो इट्स लाइक somehow they will arrange everything and they have to do it. It's that kind of expectation. Then there is another expectations की सारी चीजें वो जो है वो प्रॉपरली करेंगे, उनके लिए कोई छूट नहीं होगी, उनको सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरे करने हैं, उनको सारे बिल्स प्रॉपर रखने हैं, उनको सारी रिपोर्ट्स जो है वो टाइम पे देनी है, अदरवाइज उनको जो है जो थोड़ी बहुत फंडिंग मिल सकती है इस काम के लिए वो भी नहीं मिलेगी. सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर कि आपको सब करना है. देन अचानक से उनके ऊपर एक प्रेशर आ गया कि आपको डिजिटाइज भी हो जाना है, क्योंकि ये एक ऐसा डिजास्टर है जो आपको दूर से हैंडल करना है. So you now have to, come on the Zoom. You have to access the mail. You have to send WhatsApp. You have to call everyone. So everything is digitized. तो उनके ऊपर एकदम से जो है बहुत सारे फ्रंट्स पे प्रेशर आ गया. Then there is another thing, जैसे जो दिलीप दा भी बोल रहे थे कि कम्युनिटीज कौन सी इग्नोर्ड रहती है, उनको अगर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो ऑलरेडी सफर कर रही हैं बहुत सारी चीजों की वजह से, बीट ट्राइबल्स, बीट ट्रांसजेंडर्स, बीट सेक्स वर्कर्स. तो ऐसी बहुत सी कम्युनिटीज हैं जो ऑलरेडी सफर कर रही हैं. ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो ऑलरेडी जो है ट्रबल क्रिएट करे थे, ड्रॉट से लेकर फ्लड से लेकर जो एनुअल फ्लड से सारे इश्यूज ऑलरेडी वहां हैं. तो ये ऑर्गेनाइजेशंस अब जो है वो डुअल प्रेशर में आ गई हैं. उनको एग्जिस्टिंग जो मुद्दे हैं उनको भी डील करना है, और अब जो ये इतना बड़ा इशू हंगर का आ गया है उसको भी डील करना है. सो वो एक बहुत प्रेशर में आ जाते हैं इतने लेवल तक कि जो ये इग्नोर्ड कम्युनिटीज, लाइक आई वांट टू गिव एन एग्जांपल कि ट्रांसजेंडर्स एंड सेक्स वर्कर्स स्पेसिफिकली, उनको जो है इस समाज में अच्छी नजर से नहीं देखा जाता. इस समाज का हिस्सा है बट हम मानना नहीं चाहते हैं, हम उनको देख के इग्नोर करना चाहते हैं.
अब कुछ जगहों से ऐसी खबरें आती हैं कि हमें रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट रहती है कि उनके नंबर्स जो है लिए जाए, या उनके नाम लिए जाए, या उनकी आइडेंटिटी ली जाए, और ये वो लोग हैं जो अपनी आइडेंटिटी किसी भी शर्त पे डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं। ये उनकी लाइफ का सवाल है। तो ऐसे ही एक एरिया में जब उनसे बोला गया कि आपको ये राशन दिया जाएगा और आपको अपना नंबर या कोई आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा, सो दे सेड कि हम भूखे मर जाएंगे पर हमें नहीं देना आपको आइडेंटिटी। सो दे हैव दिस लेवल ऑफ थ्रेट कि अच्छा नहीं, हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा अगर हम अपनी आइडेंटिटी जो है वो शेयर करें। या एक और एरिया में जो है सिर्फ ट्रांसजेंडर्स और सेक्स वर्कर्स के एरिया को ब्लॉक कर दिया कि एज इफ यही लोग जो हैं वो वायरस को स्प्रेड करेंगे। सो इस तरीके के बहुत से डिफरेंट चैलेंजेस के साथ जो है कम्युनिटीज या ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो गुजर रहे हैं। और ये सच है, मतलब वो इतना, मैं कई बार इस बात को उठाया कि बहुत सारे लोगों ने अपनी मेड्स को छुट्टी पे भेज दिया, राइट? और मतलब कितना, मतलब समझ नहीं आया, उसको आपने होमलेस बना दिया, बाहर कर दिया सब कुछ। और हम सबसे यही पूछ रहे हैं कि भाई सच बात तो ये है कि मेड तो आपके घर में ही थी इतने टाइम से, तो मेड से तो आपको कोई खतरा ही नहीं था। आपको मेड से खतरा तो बिल्कुल नहीं था ना, मेड को आपसे खतरा था इस पूरे केस में, क्योंकि आप ही बाहर घूम रहे थे। वो जो सब लोग कह रहे हैं कि भाई बीमारी आई हवाई जहाज से और निकल गए लोग सड़क पे, ये तो सच बात है। यदि आप देखें तो उसमें तो कोई बात कर नहीं रहा। और दूसरा जो ये जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के जो इश्यूज आ रहे हैं, जिसको हम लोग काफ़ी लोग इस सेक्टर से हैं तो वो टैकल कर रहे हैं, कि किस तरह का अभी भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है लाइक एनी अदर डिजास्टर अनफॉर्चुनेटली कि दिस डिजास्टर कैन ऑल्सो बी हैंडल्ड इन ए प्रोग्राम मोड, कि आप हमें नंबर ऑफ बेनिफिशरीज बता दीजिए, पहले से बता दीजिए कहाँ जाएंगे। जबकि जिसको सो कॉल्ड आप बेनिफिशरी कह रहे हैं, एक तो वैसे ही गलत है, क्योंकि अब तो ये प्रूव हो गया कि कोई किसान मजदूर तो बेनिफिशरी है नहीं, बेनिफिशरी तो हम हैं, और पूरे कंटिन्यूस बेनिफिशरी हैं, तभी अपने घरों के अंदर बैठ के आराम से खा रहे हैं। तो मिला के तो वो डेफिनेशन ही चेंज हो गई। और उसके बाद भी उस इंसान को खुद का नहीं पता कि वो कहाँ है। मैं आज अभी थोड़ी देर में एक फेसबुक पे डालूंगा, कल इधर जब हम जा रहे थे आगरा की तरफ एक हाईवे पे, तो एक दो बच्चे हैं, एक 5 साल का और एक 7 साल का बच्चा। और वो जो बच्चों की जो टॉय वाली व्हीकल होता है जिसको आप घर के अंदर चलाते हो, उस पे वो दोनों बच्चे बैठे हुए हैं और उसके पिता एक रस्सी से उसको खींच रहे हैं, और वो टीकमगढ़ जा रहे हैं। 600 से 700 किलोमीटर, जब ट्रेन और बस बंद हैं, वो उस जगह पे जा रहे हैं। ये तो निकल गए हैं हजारों की तादाद में जो मिस्ड आउट कम्युनिटीज हैं, जिनको हम बात भी नहीं कर रहे, जो जिनका तुमने जिक्र किया अनीता, जो सेक्स वर्कर्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, HIV पॉजिटिव लोग हैं, पीपल विद डिफरेंट डिसेबिलिटीज हैं। और सच बात यह है कि वो देश जिसके हॉस्पिटल्स फुल हुआ करते थे, जहाँ के हॉस्पिटल में सुबह 3 या 4 बजे लाइन लगती थी और फिर भी 3 दिन बाद नंबर आता था, उसमें आज की डेट में कोविड या कोविड के सस्पेक्ट के अलावा तो बाकी ट्रीटमेंट हो नहीं रहे। तो जब ये चीज़ें खुलेंगी तो जिन मिस्ड आउट कम्युनिटीज़ की बात कर रहे हो, जिन डिजीज़ की बात कर रहे हो, वो और बड़ी होंगी। तो मैं अब वापस सीमा जी के पास जाता हूँ, क्योंकि एक जो मिस्ड आउट कम्युनिटी है वो इस देश के बहुत बड़ी तादाद में मालन्यूरिश कुपोषित बच्चे हैं, और उनकी ज़िंदगी में वो डिज़ास्टर कंटिन्यूस है, वो चलता रहता है, क्योंकि और वो बेसिकली फूड का, न्यूट्रिशन का क्राइसिस है। इस बार पूरी दुनिया को समझ आया कि फूड कितना बड़ा क्राइसिस है, क्योंकि नहीं मिल रहा, बट उन बच्चों की लाइफ में ये कंटिन्यूस क्राइसिस है। और सीमा जी, आपने, प्रकाश भाई ने वहाँ पे बहुत काम किया है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका आवाज़ आएगा। आप यदि कुछ शेयर कर सकें इस बारे में। नहीं, आपका नहीं हो पा रहा सीमा जी। चलिए, आई थिंक खंडवा जो है वो आपको शायद मालूम होगा कि एक ऑलमोस्ट एक रेड जोन में है। 100 से ज़्यादा केसेस वहाँ आइडेंटिफाई ऑलरेडी हो चुके हैं, तो एकदम से टेक सपोर्ट भी नहीं है। और प्लस हमारी थोड़ी कोशिश इस पैनल में ऐसे लोगों की भी थी जो नॉर्मली पैनलिस्ट नहीं है बट ग्रास रूट पे काम करते हैं। तो सीमा जी, इफ यू कैन कम बैक, यदि आप आए तो वापस आएंगे आपके पास, देन आई टॉक टू यू। चंदन, तुम पे मूव करता हूँ 2 चीज़ों के लिए। एक तो ऑब्वियसली जो कर्नाटका और
साउथ इंडिया को लेके हमारे बहुत सारे परसेप्शंस हैं। मिसाल के तौर पे there was a time when we always used to say that the disaster is basically it happens in north and east of the country, क्योंकि ये एक परसेप्शन ही था कि नॉर्थ और ईस्ट में ज़्यादा डिजास्टर होते हैं। और सच भी है, क्योंकि जो जो ईस्ट का डिजास्टर है, जो दिलीप दा ने जरा सा टच भी किया, आसाम, बिहार, वेस्ट बंगाल की फ्लड तो अब डिजास्टर मानी नहीं जाती। वो हर साल करोड़ों लोगों को इफेक्ट करती है, सारी फसल चौपट करती है, डिस्प्लेसमेंट करती है, बट इट इज नेवर बीन कंसिडर्ड a disaster. But if we pick up the data and if we see the trend, आप यदि देखोगे तो कर्नाटका और आंध्रा तेलंगाना के ड्रॉट से लेके सुनामी से शुरू होके कई बार साइक्लोन, केरला की फ्लड मैसिव, वो भी पिछले साल, फिर इस साल भी तमिलनाडु की फ्लड्स, बहुत बड़े बड़े डिजास्टर वहां पर हुए हैं। और ये वाला जो डिजास्टर है इसने तो ऑब्वियसली फिर सबको बराबरी पे लाके खड़ा कर दिया। तो एक तो ये कि हम साउथ में इस चीज को कैसे देखते हैं और ये परसेप्शन। हाँ सीमा जी, मैं वापस आता हूँ। गुड कि आपकी आवाज आ गई है, आप 5 मिनट दीजिए। और दूसरा चंदन की, जो क्योंकि तुम्हारी डीलिंग बहुत बड़े लेवल पर कॉर्पोरेट सेक्टर से, वॉलंटियर्स से, सिटी के लोगों से रहती है, बेंगलोर में भी, ऑल अक्रॉस द कंट्री, तो एनीथिंग यू वांट टू शेयर ऑन दैट कि वो कौन से हिडन इश्यूज हैं जो हम बात कर रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटीज अलग है, तो अर्बन ग्राउंड रियलिटीज क्या है? और इस बार का तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि शायद एज गूंज ऑल्सो हम लोगों ने भी कभी सिटीज में इतना सारा काम नहीं किया, हमने कभी बने हुए खाने नहीं बांटे, हमने कभी खाना नहीं बनाया, तो वो सब भी किया। तो ओवर टू यू चंदन फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। थैंक यू। तो मेरा पर्सपेक्टिव पूरे डिजास्टर का, बिकॉज आई हैव बीन handling disaster from last almost like 10 years. Obviously like initial phase में जब मैंने like as an organization जो एक टीम को स्टार्ट किया किसी डिजास्टर के लिए काम करवाना, तो we realize कि जब भी कभी लोग आते थे तो they always say that कि आप अगर नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं तो वहाँ तो हर साल डिजास्टर आता है, लोग वो उनके लिए यूज्ड टू हो चुके हैं, तो देन there is nothing that new about that. Same goes for जब भी एक मुझे इंसिडेंट याद है, जैसे उत्तराखंड में डिजास्टर हुआ था, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आपको सपोर्ट करते हैं, बट कि आपको एट द मिडिल ऑफ डिजास्टर आपसे बहुत सारी ऐसी चीजें मांगी जाती है जो कि आप द मिडिल ऑफ डिजास्टर आप उस डेटा को फुलफिल करेंगे या आप उस चीज पे जाएंगे जहाँ पे कि आपको अर्जेंटली उस पर फोकस करना है, जो एकदम क्रिटिकल नीड है किसी के लाइफ के लिए। तो जहां तक नॉर्थ और साउथ की बात है, तो ऑब्वियसली लास्ट अगर हम 5 सालों से जो डेटा हम देखें, तो राइट फ्रॉम केरला फ्लड, चेन्नई फ्लड, बहुत सारे साइक्लोन भी आए थे, गजा साइक्लोन, देन अगेन लास्ट ईयर हमारा नॉर्थ कर्नाटका में बहुत ही मैसिव फ्लड आया, और देन वी रियलाइज कि जो साउथ का पार्ट है पिछले कुछ सालों में काफी हिट हुआ है, एंड देन पीपल एक्चुअली आफ्टर दैट दे रियलाइज कि किस तरीके का सिचुएशन साउथ में आफ्टर डिजास्टर एक्सपीरियंस किया लोगों ने। तो जो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है इस डिजास्टर में, तो मैं कहूंगा कि पहले लोग यही सोचते थे कि अगर बिहार में, यूपी में या ओडिशा में या नॉर्थ ईस्ट में आता है तो देन पीपल आर इन नीड, बट यहाँ पे वो नीड नहीं होती है। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से कर्नाटक से अगर आप बैंगलोर छोड़ के अगर आप 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर जाते हैं, नॉर्थ कर्नाटका में आप अगर टच करते हैं, तो यू कैन इमेजिन कि जो डिजास्टर था आपका मतलब एक टाइम में आया है, और ये आपके लिए बस 10-15 दिन का ये इश्यूज नहीं क्रिएट करता है, आपके लिए वो पूरे इंटायर ईयर के लिए इश्यूज क्रिएट करता है, क्योंकि बहुत सारे आपके फार्मर्स हैं जिनके पैडी जा चुके हैं, बहुत सारे जिनके घर टूट चुके हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनके की घर का सारा सामान टोटली वॉश्ड अवे। So then you have to understand कि आपको किसी भी फैमिली को जब सपोर्ट करना है, तो then you have to start from the scratch. तो जो अभी एक फ्लड की बात करो, ऑब्वियसली अगर आप कर्नाटका को अगर और ये साउथ में
तमिलनाडु के कुछ पार्ट को देख लीजिए तो कर्नाटका के लगभग 75% डिस्ट्रिक्ट जो है ड्राउट अफेक्टेड एरियाज में कंसीडर हो चुका है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग सीजनेबल माइग्रेशन करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज उनके पास वो खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए उतने रिसोर्सेस नहीं है. दे रीमाइग्रेट टू द सिटीज एंड आफ्टर सम couple of months they again go back to their natives. तो जिस तरीके का, तो हमें आज तक हमने ये फील नहीं किया कि ड्राउट भी एक डिजास्टर है जिसकी वजह से लोग सफर करते हैं. एंड अगेन अगर आप ऑब्वियसली अंशु जी एंड आई थिंक विजय हैज मेंशन अबाउट दैट, so many farmers from Punjab, they committed suicide and they are still doing it just because of they do not have any option. And here the perception, we always say that, okay, we always talk about Bihar, UP and other places like Odisha and all. जब हम अगर इस सुसाइड, जो फार्मर सुसाइड का डेटा अगर हम मैच करें, तो आई डोंट थिंक कि अगर आप बिहार और इन जगहों का डेटा आप निकालिए और जो वेल डेवलप्ड स्टेट जिनको हम मानते हैं उनका डेटा निकालिए, तो मेरे ख्याल से वहाँ का डेटा ज्यादा है इन मामलों में, बिकॉज हम लोगों ने जो अपना परसेप्शन ही डाल रखा है वो गलत है मेरे हिसाब से. जहाँ तक अर्बन एंगेजमेंट, जैसे कि चूंकि व्हेन इफ यू टॉक अबाउट माय प्रोफाइल, सो देन I handle the operation here, and during every disaster I interact with so many organizations. So there are so many things which comes up and there are so many questions, and volunteers काफी positively वो react करते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं उसमें. तो कुछ चीजें हैं जहाँ पे कि हमें लगता है कि जैसे कि कॉर्पोरेट में अगर आपको बहुत सारी चीजें प्लानिंग फेज में चाहिए, अगर आप मिडिल ऑफ डिजास्टर में डील कर रहे हैं जहाँ पे कि स्टिल वाटर लॉगिंग है, उसके बाद भी आप ये कहते हो कि कि यू हैव टू गेट द डेटा कि इतने फैमिली तक, इतने जगहों पे आपको जाना है, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि वो सिचुएशन में आप क्या करोगे. सेकेंड थिंग इज दैट जो आपके पास जिस तरीके के सामान भी मिलते हैं और जिस तरीके की नीड होती है उसमें भी आपको बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है. तो जो एक कॉर्पोरेट का रिस्पॉन्स हमें लगता है बहुत अच्छी तरीके से यहाँ हमें रिसीव होता है, बट एक हमें जो सेंसिबल जो एक्टिविटीज को हमें प्रमोट करना चाहिए उसमें से हमें, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ये फील करते हैं कि डिजास्टर के टाइम में घर डैमेज हो गया तो हमें घर बनाना चाहिए या हमें घर को कंस्ट्रक्शन में या इनमें जाना चाहिए. तो वी से कि घर बनाना इज अगेन वन ऑफ द पार्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन, बट क्या आप उस घर को होम बनाने के लिए अगर आप कुछ नहीं देते हो तो क्या वो घर रह पाएगा? इफ यू आर नॉट गिविंग समथिंग लाइक हाउस होल्ड स्टफ लाइक यूटेंसिल्स, और जो घर का सामान वॉश डबे हो गया है, जैसे आपका जो बेडिंग मटेरियल है या खाने के लिए आपको पूरे लाले पड़े हुए हैं. तो इस डिजास्टर में सबसे पहले जो आपकी मेन प्रायोरिटी होती है वो आपके फूड को सिक्योर करना, और दूसरी बात जो आपकी डे टू डे चैलेंजेस हैं, बिकॉज कुछ टाइम के लिए आप विदाउट शेल्टर कहीं ना कहीं टेम्पररी शेल्टर क्रिएट करके रह सकते हैं. बहुत सारी जगहों में आपको ये भी दिखता है कि हाँ, कि फॉर एग्जांपल लाइक मैं एक बार वायनाड ट्रेवल कर रहा था एंड वी रियलाइज कि आफ्टर द फ्लैश फ्लड वहाँ पे जो लैंडस्लाइड्स हुए वहाँ पे इवन द हाउसेस, इवन इफ यू जस्ट रिपेयर इट, यू कैनॉट सिक्योर योर लाइफ अगर आप उसमें रह रहे हो. अगले 1 साल के बाद शायद इट माइट पॉसिबल कि थोड़ा सा क्लाउड ब्रस्ट हुआ या थोड़ा सा आपको कोई भी तरह, किसी भी तरह के जो छोटे से बाढ़ का सिचुएशन फेस करना पड़ा, तो यू डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. तो इस सिनेरियो में क्या हमें उन चीजों पे फोकस करना चाहिए या कुछ और चीजों पे फोकस करना चाहिए? जो वॉलंटियर्स का है. हाँ जी, नहीं बोलो वॉलंटियर्स को बोलो, फिर मैं एक सवाल था मेरा तुमसे कोलार को लेके, जरा वो एक इम्पोर्टेंट सवाल है. तो वॉलंटियर्स का हमारे पास जो मैं ये कहूँगा कि जो साउथ में काफी सारे लोग जो हैं वॉलंटियर्स हैं, उनका रिस्पॉन्स हमें बहुत अच्छा डिजास्टर के टाइम मिलता है. बट कुछ चीजें मैं यहाँ पे ये भी उठाना चाहूंगा कि जो डिजास्टर्स है हमने उसको डिफाइन कर रखा है कि फ्लड आएगा वही डिजास्टर है, या अर्थक्वेक आएगा दैट इज अ डिजास्टर. पेंडेमिक जो अभी हमारा कोरोना क्राइसिस है उसको हमने डिजास्टर ट्रीट कर रखा है. बट वी नेवर टॉक्ड अबाउट कि हाँ विंटर इज ऑल्सो एन एनुअल डिजास्टर. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि फायर भी एक डिजास्टर है. बहुत सारे लोगों के घर चले जाते हैं या उनके सारे सामान चले जाते हैं.
हम उनको डिजास्टर नहीं कंसीडर करते हैं। बहुत सारे जगहों पे कम्युनल डिस्टरबेंस होते हैं, उसकी वजह से भी लोग डिस्प्लेस होते हैं, क्या हम उनको डिजास्टर कंसीडर नहीं कर सकते? तो ये सारे चीजें हैं जो कि आई थिंक वो एक डिजास्टर का जो हमारा जो मेन परसेप्शन जो हमने क्रिएट कर रखा है, आई थिंक हमें उसे थोड़ा सा चेंज करना चाहिए और हमें उसे सिचुएशन बेस्ड डिजास्टर के कैटेगरीज में हमें लाना चाहिए। जहां तक कोलार, आप आई थिंक यू तो कैन चंदन, आंसर। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे एक कभी विजय कैन थ्रो मच बिगर लाइट ऑन दैट, कि जो अभी ये हो रहा है कि फार्मर का जो डिस्ट्रेस है और बहुत सारी फसल वहाँ तैयार खड़ी हुई है, खासतौर पे वेजिटेबल्स, पेरिशेबल्स एंड ऑल दैट। तो जैसे हम लोगों ने गूंज हमने किया कि हम लोकल फार्मर से खरीदना शुरू करा, और बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको कॉस्ट प्राइस पे लेने की बात कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया व्हाट हैपेंस व्हेन ए फार्मर रियली कैलकुलेट्स द कॉस्ट प्राइस, वो उसमें कभी भी अपना मेहनताना नहीं जोड़ता है, वो सिर्फ बीज और खाद का यदि कोई पैसा लगाया तो उसके बेस पे करता है। तो आई वाज रियली रियली शॉक टू फाइंड आउट कि इस समय बिहार के कुछ एरियाज में people are farmers are ready to give 1 quintal which is 100 kg of green chili in 400 rupees। मतलब 4 रुपए किलो पर वो हरी मिर्च आपको देने के लिए तैयार है, क्योंकि बहुत डिस्ट्रेस सेलिंग है। तो चंदन, इफ इन अ मिनट, because now we will wind up because we need to take lot of questions also, तो इन अ मिनट यदि तुम ये बताओ कि कोलार का यदि तुम सिनारियो बता सको आज की डेट में लोगों को, या क्योंकि कर्नाटक को फिर हम लोग दूर बैठ के सोच रहे हैं कि वहां पर उस तरह का डिस्ट्रेस नहीं है, और सारा डिस्ट्रेस कुछ एक इलाकों में ही है देश के, जो हमारा परसेप्शंस है अनफॉर्चुनेटली डिजास्टर, पॉवर्टी और इश्यूज को लेके। तो same thing, if you can just throw light with respect to kolar and the tomatoes, which are integral part of all our diets and food. Yes, so during this pandemic actually what we realized that because kolar is one of our work area where we have been working from last couple of years, and we have been interacting with farmers from so many years. So what we realized is during this lockdown phase कि बहुत सारे farmers, because kolar, if you just geographically or if you just google it about the kolar कि वहाँ पे किस तरीके के काम होते हैं, तो most of the families are actually farmers and mainly the crops are mangoes and tomatoes। जहाँ पे कि आप अगर कोलार के मैंगोज की बात करें तो यहाँ से वो इजराइल तक एक्सपोर्ट होता है, या ऑल अक्रॉस इंडिया में आई थिंक टॉप मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में कंसीडर होता है मैंगोज और टमाटोज के लिए। तो व्हाट वी रियलाइज कि इस लॉकडाउन के फेज में जहाँ पे 8 लाख हेक्टेयर्स में आप टमाटोज ग्रो कर रहे हो कोलार के अंदर, आपके पास उसके लिए मार्केट नहीं है, आपके पास उसके लिए ये नहीं है जहाँ कि आप इसे कंज्यूम कर पाए। जो ट्रांसपोर्टेशन, जो लॉजिस्टिक्स के जो चैलेंजेस हैं वो फार्मर उस तरीके से डील नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से उनके जो भी क्रॉप थे या तो वो जो पौधों में लगे वो खराब हो रहे थे, या उन्होंने अगर वो प्लग करके रख लिया, स्टोरेज कर चुके थे, just because of they were not getting any buyers, they were not getting any demand from the mandi, they were actually forced to throw in a open land because उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। When we started visiting for this relief distribution under this corona pandemic, we saw that okay, we are somewhere helping some needy, some people who are actually struggling for the food, and hunger is the biggest challenge for them right now. And same time what we realized that okay, these farmers, they have grown so much of tomatoes, but if they will not earn, because ये जो 3 महीने का जो फेज है, इस 3 महीने के फेज में आई थिंक वो 7 से 8 महीने का अपना कैपिटल सिक्योर करते थे, और उस कैपिटल को आप इस तरीके से आप रोड पे देख रहे हो कि वो वेस्ट हो रहा है या उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे फार्मर्स से हम मिले और उनसे बात हमने किया, तो वी रियलाइज कि उनके जो लेबर चार्जेस हैं वो भी नहीं निकल पा रहे हैं, वो अपने लेबर चार्जेस को कभी इंक्लूड करते ही नहीं है। जिनको उन्होंने एम्प्लॉय किया था उस टाइम बुआई में या क्रॉप को सैपलिंग प्लांट करने में, उनकी चीजों को वो कैलकुलेट करके बताते थे कि सर मेरा इतना पर केजी का कॉस्टिंग हुआ, सर वो भी नहीं निकल पा रहा। एंड यू कैन इमेजिन कि अगर हम यहाँ से एक व्हीकल हायर करके इफ वी आर सेंडिंग इट टू लोकल मंडी,
then we will not get anything with that. So better हम इसे या तो कहीं डाल दें या किसी animals को दे दें, and we don't have any option. So we discussed that, okay, there is something, and again, if we are not helping them, so our focus to, you know, save the lives will not be solved अगर हम लोग वहाँ के farmer को भी उनके life का जो crucial issues है solve ना करें. तो हम लोगों ने भी decided कि we will buy tomatoes from them directly, and then we started buying, and almost like, you know, approx 20 tons of tomatoes directly from farmer we bought it, and then locally in nearby pockets we distributed. We even brought here in Bangalore, and then we started giving to, you know, the small vegetable seller also, because our focus was कि एक farmer का जो livelihood है उसको बचा रहे हैं, दूसरा हम अगर छोटे जो vegetable seller हैं उनके पास भी option नहीं है कि वो इस लॉकडाउन फेज में वो अपने इन्वेस्टमेंट को रूट कर पाए. So we decided कि we will also support some of the vegetable sellers, and then this is how in one go you are supporting two livelihood. One is directly to the farmer, second is the local urban seller जिनके लिए शायद हम लोग उस तरीके से नहीं सोच पाते हैं. And obviously जो टमाटो है उस डिस्ट्रीब्यूशन में भी ला सकते हो रिलीफ के टाइम में. थैंक यू चंदन. सीमा जी, फिर कोशिश कर रहा हूँ आखिरी आपके साथ बात करने के लिए. मुझे लगता है ऑडियो काम करने लगा है, तो थोड़ा सा यदि आप हमें समझा सकें कि ये जो पूरा क्राइसिस है जो बहुत साल से चला आ रहा है, आपको भी 20 साल हो गए काम करते हुए, और वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा एक लेवल के बाद. और दूसरा बात ये कि आई थिंक व्हाट द वर्ल्ड नीड्स टू अंडरस्टैंड, स्पेशली फॉर द पीपल लाइक अस जो हम लोग इस पैनल में हैं या जो बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, कि पिछले 10-20 साल का जो हम लोगों का काम है वो काफ़ी नीचे चला गया है अब, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आप जो लोग माइनस में होते हैं, गड्ढों में होते हैं, आप उनके साथ काम कर करके 10-20 साल में उनको कहीं हाशिए पे या बॉर्डर पे लेके आते हो, एंड देन such kind of disaster really, you know, it is such a big jolt on our work and large communities also in this country. तो सीमा जी, मैं आपसे 2 मिनट जानना चाहूँगा कि ये जो पूरा क्राइसिस है वहाँ, क्योंकि खंडवा एक ऐसा एरिया है जिसमें नॉर्मली ड्रॉट की बात सुनते हैं, फिर बीच में एक बार फ्लड भी सुना, फिर माल न्यूट्रिशन के इश्यूज हैं, जबकि वो मैं हमेशा ये स्टोरी सुनाता हूँ कि किशोर कुमार का बहुत, एक बार मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था, धर्मयुग तब आया करती थी, और उसमें कोई किशोर कुमार से बार बार पूछ रहा था कि भाई आप रिटायर हो जाएंगे तो क्या करेंगे, और किशोर कुमार का वो टाइटल छपा था उसमें कि हम तो खंडवा जाएंगे दूध जलेबी खाएंगे. तो मैं अक्सर सोचता था कि खंडवा की दूध जलेबी में क्या है. फिर मैं वहां आया तो वहां पे वो देखा हमने, और इसलिए मैं इसको जिक्र करता हूँ हमेशा, क्योंकि एक एरिया जिसमें आप पहुंचते हो दूध जलेबी के लिए, और उस एरिया में खबरें सुनते हो माल न्यूट्रिशन की, और वो भी लार्ज स्केल पे बच्चों की. तो मतलब, और वही विजय वाली बात दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, या दिलीप दा वाली बात की है हमारे पास, ऐसा नहीं कि हमारे पास है नहीं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज है. ओवर टू यू सीमा जी, आपसे. एक तो सबसे बड़ा ये है डिजास्टर कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा भुखमरी बहुत ज्यादा है पूरे साल, और अभी तो ये डिजास्टर आ गया कोरोना वायरस, तो इसके कारण जो है ना कि बहुत सारी जो सरकार की सुविधाएं थी वो भी बंद हो गई. जैसे आंगनवाड़ी थी जहाँ पर बच्चों को पोषाहार मिल रहा था, जहाँ हमारे इलाके में 50% बच्चे कुपोषित हैं, जो कि सैम और मैम कैटेगरी में आते हैं, यानी सीवियर. बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि कभी भी मर सकते हैं, और अभी जो हालत हो रही कि खाने का ही घर पे नहीं है लोगों के पास. खेत का अनाज जो खड़ा था वो खड़ा का खड़ा ही रहा, क्योंकि मजदूर नहीं मिले काटने के लिए. तो सबसे बड़ी बात है कि भुखमरी हमारे एरिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसीलिए खालवा की एक पहचान है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा यानी 50% बच्चे कुपोषण से मरते हैं यहाँ पर. और दूसरा ये है कि जो अभी एनआरसी है जहाँ पर सैम एम बच्चों को रखा जा सकता था हॉस्पिटल में, वो भी बंद है. तो ये और बच्चों का एक ऐसा इशू है कि वो वोटर नहीं है, तो उनके लिए कोई सुनने वाला भी नहीं है, बात भी नहीं होती है. अभी सारे डिजास्टर की बात हो रही है, लोग पैदल चल रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, उसमें ये बच्चे जो 0 to 5 years के हैं, 7 years के हैं, उनकी जब उनकी सारी सरकारी चैनल ही बंद कर दिए गए, यानी आंगनवाड़ी बंद है, एनआरसी बंद है, टीकाकरण बंद है, उस समय इन बच्चों की हालत कितनी खराब होगी.
तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे इलाके में जो भुखमरी है, वो जो सतत भुखमरी है, वो एक बड़ा डिजास्टर है। और हम लोग इसके साथ काम करते करते अभी 15 साल हुए हमको काम करते हुए, 20 साल हो गए। तो हमें भी यही लगने लगा कि इस इशू पे काम जो है ना और बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी खालवा से ही बाहर नहीं निकल पा रहे। लोग बोलते हैं कि दूसरे इलाके में आइए, यहाँ काम कीजिए, लेकिन हमें ये लगता है कि अभी तक तो हम खालवा से ही बाहर निकलने की स्थिति में नहीं है कि जहाँ हम कह सकें कि हमारे बच्चे आज जो है ना सामान्य है, नॉर्मल हैं। तो यहाँ पर, और ये एक क्रॉनिक हंगर है कि यहाँ पे सतत भुखमरी है खालवा में, और यहाँ पे सूखा की स्थिति। अभी आप आएंगे तो देखेंगे पानी का बड़ा समस्या है, कहीं पानी नहीं है। तो आपने 1-2 कुएं आपने शुरू में खुदवाए थे गूंज के साथ मिलके, हम लोगों ने सालीढाना में, लंगोटी में। तो ये बड़े जो कुपोषण है, ये बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा डिजास्टर है। और सीमा जी, मतलब जैसे क्या है कि वो जो हम इग्नोर्ड कम्युनिटीज बोलते हैं, तो इसमें तो हमेशा कभी ध्यान दिया नहीं गया है इन बच्चों के ऊपर। तो आपको क्या दिख रहा है, आगे क्या दिख रहा है जब ये हॉस्पिटल्स बंद हैं, जो आपने अभी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए। तो मैं अगले 2 मिनट में दोबारा आपके पास आऊंगा, क्योंकि 5-1 मिनट हम लोग सवाल ले लेते हैं, और उसके बाद 10 मिनट हम लोग एक सोल्यूशन पे बात करेंगे कि क्या हम लोग जो ग्राउंड से आ रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर, क्या वो कोई 1 या 2 सोल्यूशन बता सकते हैं, बिकॉज प्रॉब्लम तो हम सभी लोग डिस्कस कर ही रहे हैं। तो दिलीप दा और विजय, यदि आपके पास मैं वापस जाऊं, तो अभी ये बहुत सारे सवाल उसमें जो उठ रहे हैं Q&A में जो आ रहे हैं, वो ये सारे दुनिया भर के रिलीफ पैकेजेस को लेके आ रहे हैं, जो अभी सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, और अभी किसानों के लिए भी हो रहा है। मतलब टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो इस बात का बड़ा दुख होता है कि किसी भी किसान को यदि आपको राहत देनी है तो उसको लोन दे दो, और किसी रईस को यदि राहत देनी है तो उसका लोन माफ कर दो। मतलब ये हम ये डबल स्टैंडर्ड कैसे लेके चलते हैं, मेरी कभी समझ में नहीं आता। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, क्या डिलीवरी इसकी होने वाली है, क्या आपको लग रहा है, गिवन द वे थिंग्स आर ऑपरेटिंग। if you can comment, दिलीप दा आप पहले बोलिए, फिर विजय बोलिए, उसके बाद we will just come to the concluding remark, because 12:15 we need to close it. Exactly. तो मुझे एक पंचायत की जो भूमिका हो सकती है, और शहरी क्षेत्र में नगर पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी के जो भूमिका हो सकती है, कि हर एक पंचायत को और हर एक म्यूनिसिपैलिटी को ये सौंपना चाहिए कि वो अपना क्षेत्र में जिनको रियली सपोर्ट मिलनी चाहिए उसकी सूची बनाए, तत्काल उस पर काम करें। ये एक सलूशन होनी चाहिए सरकार की ओर से, क्योंकि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पंचायत टच नहीं करते हैं, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है सारी की नगर पंचायत टच नहीं करते हैं। क्यों ना हम उसके मध्य ये काम करें, और इसको सूची बनाने के लिए वो चाहें तो हमारे जैसे ग्रासरूट लेवल जो वॉलंटियर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रुप्स हैं, उनके सहायता ले। हमें कोई पैसा नहीं देना, हम बिल्कुल वॉलंटरीली ये काम करेंगे, तैयार है, हम लिख के दे सकते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें एकदम बिना हिचकिचाहट की आपको आनी चाहिए कि आप कन्वर्जेंस पे जरूर काम करोगे। सरकार को ये करना होगा, वरना ये कभी भी संभाल नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी केवल गरीब की बात हो रही है। अभी लोअर मिडिल क्लास ऑलरेडी हमारे रिलीफ में आ रहे हैं, जहां हम रात को सामान पहुंचा रहे हैं, आपको भी पता है, रात को सामान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि दिन में वो सामने आ नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब जो निचले तबके की आ रहे थे इकोनॉमिकली, अब उसके ऊपर जो थे वो भी आ रहे हैं। तो ये अगर लंगर टर्म चलेगा तो ये जान लीजिए कि धीरे धीरे जो सर्विस करने वाले वो अभी ठेले लेके निकाल रहे हैं सब्जी बेचने के लिए। तो ये स्थिति सरकार, क्योंकि सरकार से इनको कभी कुछ नहीं मिलेगा। ये हम डिजास्टर में भी बोलते हैं, हर डिजास्टर में हम पोरेस्ट ऑफ द पोर को दे रहे हैं, लेकिन जिनसे काम मांग रहे हैं उसके लोन क्यों नहीं दे रहे हैं, उनको तत्काल सपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सोचना चाहिए कि जिनसे हम सपोर्ट मांग रहे हैं, हमारा सोशल बॉन्डिंग को और हमारा वर्किंग डेज जिनसे हम लेंगे, उनको आप सही बात बोल रहे हैं कि उनको लोन तो हम दे सकते हैं, और इनको हम भले ऐसे सपोर्ट दे दे। तो ये पंचायत और नगर पंचायत को बिल्कुल उतारना चाहिए।
इसमें कोई दूसरा राय देने की कोई जरूरत ही नहीं। ये तो सच बात है, बहुत बड़ा फेल्योर है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब एक बंदा कोई 100-1000 किलोमीटर चलता है तो वो कई स्टेट पार करता है, कई सिटी पार करता है, कई गांव पंचायत पार जैसे करता आपने है। किए हर जगह हैं एक सरकार है। हाँ। वो कुछ नहीं हो पा रहा वहां पर। नहीं, गंडिया में जो सपोर्ट आप दिए हैं गोंडिया में, वहां आप देखे होंगे कि बस से आदमी उतर रहे हैं और वहां कम्युनिटी किचन चालू है, तो वहां लोग दिन रात खा रहे हैं, दिन में भी रात में भी 2 शिफ्ट चलता है, उसमें गुंज का सपोर्ट भी पहुंचा है। तो ये तो जरूरी है। ये पंचायत क्यों नहीं करेगी, ये नगर पंचायत क्यों नहीं करेगी? विजय, आपका कोई कमेंट? म्यूट है। आई थिंक एक जो दिलीप दा ने अभी बोला और चंदन ने थोड़ी देर पहले बोला था, एक इम्पोर्टेंट वर्ड है लोकल। अगर हम लोकल पे थोड़ा सा फोकस करें, और आपने गूंज ने अपने काम में हमेशा इस पर फोकस किया है कि लोकल इकोनॉमी पे और लोकल रिसोर्सेज की को लेके लोकल सॉल्यूशंस की बात की है। और अगर आज की तारीख में हम देखें तो दैट इज व्हाट इज वर्किंग। अगर आप ढूंढना भी चाहेंगे, एग्जांपल्स भी देखना चाहेंगे कि खाना कौन पहुंचा रहा है, लोकल कम्युनिटीज उन खाने को पहुंचाने के काम कर रही है। ज्यादातर जितने भी सर्वेज आ रहे हैं वो सब इंडिकेट करते हैं कि जितना रिलीफ मिला है वो तकरीबन 80 to 90% रिलीफ एनजीओज ने दिया है या लोकल कम्युनिटीज ने दिया है। सरकार का कोई रोल नहीं है उसमें, विच एसेंशियली मीन्स कि द सिविल सोसाइटी, जिसको हम सिविल सोसाइटी बोलते हैं, समाज बोलते हैं, वो आके खड़ा हुआ है साथ में and providing local solutions for the people even when the disaster is a global disaster. And this is a very important thing. Let me give an example from a perspective of agriculture. बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज है जो सीमा जी भी बोल रही थी और बाकी लोग भी बोल रहे थे कि जो छोटा किसान है, जो सबसे छोटा किसान है, मजेदार बात यह है कि सबसे छोटे किसान पे चोट इस डिजास्टर की कम लगी है। एक ये बहुत बड़ा काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन है जो निकल के आ रहा है ग्राउंड से। इसका कारण ये है कि जो छोटा किसान है उसने उसकी सप्लाई चेन हमेशा से छोटी थी। वो हमेशा से लोकल हाट में बेचता था या 2 या 3 किलोमीटर जाके बेच पाता था, उससे आगे बेच नहीं पाता था क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं थी। तो 2 सप्लाई चेन, जो 2 या 3 किलोमीटर की सप्लाई चेन है या 4 या 5 किलोमीटर की सप्लाई चेन है, केप्ट वर्किंग। 2 सप्लाई चेन जो 5 किलोमीटर से 10 या 15 किलोमीटर जो सिटी बाउंड्रीज है वहां की सप्लाई चेन, जैसे टमाटर क्रॉप है या आलू का क्रॉप है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उन क्रॉप का आपने देखा होगा शॉर्ट सप्लाई हो गया मार्केट में। क्यों? क्योंकि उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है। जो फार्मर कैश क्रॉप करता था उसका प्रॉब्लम हुआ, जो फूड क्रॉप करता था उसका प्रॉब्लम कम हुआ। अब फ्लावर, जैसे फॉर एग्जांपल इतने सारे फार्मर्स इंडिया वन में फ्लोरिकल्चर करते थे, सारे के सारे बुरी तरह से उनको लॉस हुआ। पोल्ट्री फार्मर्स को लॉस हुआ। जो दूध के किसान हैं जो कोऑपरेटिव से नहीं जुड़े हैं उनको मैसिव लॉस हुआ, जबकि जो कोऑपरेटिव से जुड़े हैं उनको सबसे अच्छा फायदा मिला। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि बता रहे हैं कि अगर आप उस तरह की सप्लाई चेन बिल्ड करें, सॉल्यूशंस हैं हमारे पास। हम अगर सॉल्यूशंस की बात करें तो हमारे पास सॉल्यूशंस हैं क्या, पर हम उन सॉल्यूशंस को किसी की लोकल सिस्टम से साथ जोड़ने की बात करते हैं। हम क्यों ये कहते हैं कि टमाटर बंगलौर में पैदा होगा या मतलब कर्नाटक में पैदा होगा और वो दिल्ली तक आएगा? इट डजंट मेक सेंस। लॉजिस्टिकली ऑल्सो हर तरीके से वो सेंस नहीं बनता है। पर हमने अपने प्रोडक्शन सिस्टम्स को इस तरह से बनाए हैं, उनके इंसेंटिव भी इस तरह से किए हैं कि हम उसने जानबूझ के ये आर्टिफिशियल क्राइसिस क्रिएट किया है, जो कि जिसका रूप हम देखने को अभी मिल रहा है इन अ फॉर्म ऑफ, सीमा जी माल न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे, भुखमरी की बात कर रहे थे। इन अ कंट्री वेयर फूड इज एक्सेस, वी हैव मोर फूड बट स्टिल वी हैव हंगर, व्हिच इज डेफिनेटली अ फेलियर ऑफ आवर पॉलिसीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये फेलियर है हमारी इंटेंट की, हमारी नियत की, और वो एरिया है जिस पे हमको फोकस करना है। तो जो लार्जली सवाल बहुत हैं तो वो बाद में कभी हो पाएंगे क्योंकि आखिरी 5 मिनट बचे हैं हम लोगों के पास में। और आई थिंक ये जैसे किसी ने लिखा था कि वो मिडिल क्लास भी पहुंच रहा है वहां पर, वो भी उस हाल में। वही दिलीप दा भी शेयर कर रहे हैं, वो हम लोग देख रहे हैं।
काफ़ी हद तक। ऑल्दो सबने कहा कि भाई डिजास्टर बहुत बड़ा इक्वलाइजर है, तो है भी, लेकिन ये भी सच है कि जो अल्ट्रा रिच हैं, जो रिच हैं, वो एक अलग लेवल पे हैं, और जो सड़क पे है वो अलग लेवल पे है। तो इक्वलाइजर होगा अपने आप में, बट उसके बाद भी इनइक्वालिटी इसमें है कहीं ना कहीं विजिबल। अनीता, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ वापस इन द लास्ट 5 मिनट्स, वॉट एवर टाइम वी गेट फ्रॉम अदर्स, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम सभी लोगों के लिए, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो इस पर्टिकुलर डिजास्टर को हैंडल कर रहे हैं, वो है कि जो लास्ट लेवल पे जो दिलीप दा ने पंचायतों वाली बात बोली, या उन्होंने सीमा जी ने छोटे हॉस्पिटल्स की और वहाँ के हेल्थ सिस्टम की बात बोली, विजय ने किसानों की बात बोली, चंदन ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं या फार्मर की बात कर रहे हैं, तो सब लोगों को मिला जुला के जो एक बहुत बड़ा हम लोगों के पास में एक डिलीवरी सिस्टम है, जो जिसका कम्युनिटी से बहुत बड़ा कनेक्ट है, वो ग्रास रूट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं। एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर और टॉक और एडवाइस और सजेस्ट, क्योंकि ये आखिरी आधा मिनट हम लोग लेंगे सिर्फ एक सोल्यूशन के लिए कि क्या होना चाहिए हम लोगों की तरफ से, सब लोगों की तरफ से, टू एटलीस्ट फाइट इट आउट, ये वाला डिजास्टर को जिस भी लेवल पे हम लोग टैकल कर सकें। So I think the first thing is to acknowledge. Actually, सबसे पहले जो है वो moral boost करने वाली जो बात होती है, इस टाइम पे we have proved as a sector, we have proved कि हम बहुत ज्यादा नेटवर्क में फैले हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं, अनलाइक अदर बिग कॉर्पोरेट्स एंड अदर, कि वो एक चीज में काम करने वाले लोग एक साथ मिलके काम नहीं करते हैं। एंड दिस सेक्टर ये हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़ के एक दूसरे के साथ काम करते हैं। एंड दिस नेटवर्क हैज प्रूव्ड वेरी वेल कि हम जो है एकदम इंटीरियर्स में जाके काम कर सकते हैं। दिस मेंटल स्ट्रेंथ इज देयर कि कुछ भी हो आप इसमें काम करेंगे, आप अपनी परवाह नहीं करते हैं, आप अपनी फैमिली की परवाह नहीं करते हैं, आप किसी की परवाह नहीं करते हैं। और एक हेल्थ डिजास्टर में जिसमें जो है सारे लोग पीपी की, मास्क की, सबकी डिमांड कर रहे हैं कि फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और उनको चाहिए, डेफिनेटली चाहिए, बट ये भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो अनएक्नॉलेज्ड हैं, जो कहीं पे भी कम्युनिटीज में जा रहे हैं और जो फर्स्ट थिंग है जो कि हंगर है उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीमार तो वो तब भी होंगे और अगर उन तक खाना नहीं पहुंचेगा तो उनके मरने के चांसेस और ज्यादा बढ़ते जाएंगे, इम्यूनिटी वीक होती जाएगी। तो ये फ्रंटलाइन वर्कर्स जो इस कैटेगरी के हैं उनको एक एक्नॉलेजमेंट की और एक मॉरल बूस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। दिस इज व्हाट आई फील, क्योंकि बहुत ज्यादा गिल्ट में रहते हैं इतना काम करने के बाद भी कि हम जो कर सकते हैं या तो वो कर नहीं पा रहे हैं या उससे बियॉन्ड जो है करना चाह रहे हैं, वो गिल्ट से बाहर नहीं निकल पाते। सो दैट मॉरल बूस्ट आई गेस इज रियली रियली इम्पोर्टेंट। सीमा जी, वन लास्ट सेंटेंस। हमें लगता है कि जैसा शुरू में हम लोगों ने काम अभी हमको करना पड़ेगा कि जो काम के बदले अनाज वाला है, क्योंकि इसी से हम बच्चों का और माताओं का, जो गर्भवती माताएं हाई रिस्क मदर हैं, उनको हम डायरेक्टली इसी से सपोर्ट कर पाएंगे। क्योंकि इस समय जो किसी के पास अगर पीडीएस शॉप की पर्ची नहीं है तो वहां भी राशन उसको गवर्नमेंट से नहीं मिल रहा है। तो हमें लगता है काम के बदले हमको, जो हम पुराने समय से 2007 से आपके साथ मिलके कर रहे थे, कि हमको लगता है कि वापस हमको काम के बदले उसमें जाना पड़ेगा अनाज में, जिससे डायरेक्ट, क्योंकि मनरेगा चालू किया है सरकार ने, लेकिन पेमेंट को लेकर के फिर वही 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, और अपन काम के बदले अनाज का काम करते थे, तो आज काम किया कल अपना राशन ले जाओ। अभी वो क्विक काम करने की आवश्यकता है। थैंक यू। तो मेरे ख्याल से आखिरी 2 मिनट है, तो आई जस्ट ट्राई टू सम इट अप, इंस्टेड ऑफ, क्योंकि टाइम थोड़ा मेंटेन कर लेते हैं, बिकॉज़ लॉट ऑफ पीपल हैव अदर सेशंस एंड ऑल। तो जस्ट टू सम अप, फॉर श्योर थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू टू लिसन एंड फॉर ऑल ऑफ यू टू come back and speak out your concerns, your suggestions. More importantly, शायद हमें ये समझना पड़ेगा कि हम लॉकडाउन, जो मैं बार बार बहुत बार कह रहा हूँ कि लॉकडाउन एक डेट नहीं है, ऐसा नहीं है कि तीसरा लॉकडाउन, चौथा लॉकडाउन, इसकी ये डेट, उसकी वो डेट। लॉकडाउन अब हम लोगों की लाइफ में काफ़ी समय के लिए आ गया है, और जब तक लोगों की ज़िंदगी में उनका रोजगार वापस नहीं आएगा, टिल द टाइम दे आर बैक टू देयर एम्प्लॉयमेंट, they're settled, the lockdown is there in their life. दूसरा, हम बार बार ये एडवोकेट कर रहे हैं कि इसको सोशल डिस्टेंसिंग कहना बंद कीजिए। सोशली तो हमें और क्लोज होने की ज़रूरत है, आपस में एक दूसरे के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। ये सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस है, इसमें सोशली डिस्टेंस नहीं करना है, फिजिकली डिस्टेंस मेंटेन करनी है। तो वो एक टेक्निकल एस्पेक्ट है, फिजिकल एस्पेक्ट है, उसको हैंडल किया जा सकता है।
सोशल डिस्टेंस जब आप बोलते हैं तो बहुत इमोशनल मामला हो जाता है, जबकि इमोशनली हमको बहुत साथ में रहना है। और तीसरा मैं ये बोलना चाहूँगा इस डिज़ास्टर के बारे में, पहले और सारे डिज़ास्टर्स के बारे में, खासतौर पे इसमें हंगर एक सबसे बड़ा इशू है। और वी ऑल नीड टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड कि हंगर को कोई भी देश दुनिया में या हम में से कोई भी प्रोग्राम की तरह टैकल नहीं कर पाया है, कि कोई एक प्रोग्राम करके हम कुछ कर देंगे, वो नहीं होगा। और एक आखिरी बात हम सब लोगों के लिए इस सेक्टर के बाहर की, कि आधा किलो दूध किसी के हाथ में देके, आधा किलो अनाज किसी के हाथ में देके फोटो खींचना बंद कीजिए, फोटो मांगना बंद कीजिए। डिग्निटी का सवाल है। और जो लोग हम लोगों को जो सड़कों पे दिख रहे हैं, जो कल रात का भी एक वाकया है, रोज की कहानियां हो रही हैं, वो उनमें से कम 80-90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी हाथ नहीं फैलाया। वो कम खाते थे, जैसे भी रहते थे वो अपने तरीके से रहते थे। दिस अनफॉर्चुनेटली दिस डिजास्टर हैज फोर्स्ड देम, क्योंकि सर्वाइवल और भूख का सवाल हो गया है तो हाथ फैलाना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि लोगों की डिग्निटी मेंटेन्ड रहे। बिकॉज मैं अक्सर किस बात को कहता था कि डिजास्टर आपके नेक्स्ट डोर है। ये शायद टीम ने कई बार सुना होगा कि ऐसा नहीं है कि जो फ्लड प्रोन, साइक्लोन प्रोन एरिया में रहते हैं डिजास्टर उनके पास ही होता है। डिजास्टर नेक्स्ट डोर है। कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि इस तरह से डिजास्टर नेक्स्ट डोर हो जाएगा या अपने सामने आ जाएगा। टुडे द फैक्ट रिमेन दैट इफ वी यूज द wrong word about the disaster affected people, which often people say disaster victim, so the fact remains that almost all of us are the victim of the disaster. It's a wrong choice of word, but that is what it is. कुछ privilege हैं जो घर के अंदर बैठे हैं और कुछ नहीं हैं जो घरों के बाहर भटक रहे हैं। And unfortunately वक्त के साथ में वो सिर्फ नंबर होते चले जा रहे हैं कि आज 24 मरे, आज 14 मरे, आज 7 कटे, which is such a painful time for all of us. तो पॉजिटिव रहते हैं, सॉल्यूशंस सोचते हैं और मान के चलते हैं कि ये कोई भी डिजास्टर एक फेज होता है, एक साइकिल होता है, तो इसका भी एक अपर पार्ट आएगा जो पॉजिटिव होगा फॉर ऑल ऑफ अस। एंड लेट्स अंडरस्टैंड दैट इट इज अ डिजास्टर वेयर द ह्यूमैनिटी इज चैलेंज्ड, इट इज अ डिजास्टर वेयर द बिहेवियर इज चैलेंज्ड, इट इज अ डिजास्टर विच इज अ डिजास्टर ऑफ द ट्रस्ट डेफिसिट। क्योंकि यदि हमने समाज में ढंग से काम किया होता, लोगों को इज्जत दी होती, ह्यूमन को ह्यूमन माना होता, तो लाखों लोग 1000 किलोमीटर की, 500 किलोमीटर की यात्रा पर, इतनी पेनफुल यात्रा पर नहीं निकले होते। तो टू बी ऑनेस्ट, आप माने या ना माने, मैं ये कह के एंड करूँगा कि ये हम जैसे लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं किसी वेबिनार को सुनना या करना, ये एक बहुत बड़ा थप्पड़ है हम जैसे लोगों पर। क्योंकि अब ये, और शायद ये हम लोगों के लिए मौका है that we give back to the people and try to understand that what went wrong. And on a positive note, if we start looking at our own behavior and the way we have been treating people, मतलब ये जो पूरा डोनर और बेनिफिशियरी का जो हम इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट करके रखते हैं, बजाय सबको स्टेक होल्डर बोलने के या फेलो सिटीजन बोलने के, वक्त आ गया है कि हम समझ लें। और यदि बेनिफिशियरी बोलना ही है तो अपने को बोले, क्योंकि जो डोनर है वो तो सड़क पे चल रहा है और या राशन की लाइन में लगा हुआ है। जो बेनिफिशियरी हैं वो घरों के अंदर महफूज हैं और चावल की खीर भी बना के खा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हाँ चंदन। नहीं तो हम लोग जैसा कि एट लास्ट आई वुड लाइक टू से, और जो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि अब हमें ये फेज आ गया है कि हमें मानना चाहिए कि पॉवर्टी भी एक बड़ा डिजास्टर है और इसको कहीं ना कहीं हमें कंसीडर करना चाहिए और उसे अपने लेंस को जो है चेंज करने की जरूरत है और उसे डिफरेंट तरीके से देखने की जरूरत है। बहुत बहुत जी, ओके जी, स्टे सेफ, स्टे वेल एंड लगे रहिए। थैंक यू वेरी मच। तन्वी, ओवर टू यू इफ इट ऑल यू देयर। Yeah, thank you very much Anshu ji and all the panelists for that very thoughtful session and the call to action. I think it's extremely important, so thank you very much for your time. Thank you. And all of those listening in, do join us back at 1 p.m. for the closing address.
with Ms. Rohini Nilekani, Ashish Dhawan, and Sanjay Pugalia. Thank you very much.